السلام علیکم ویور، میں ہوں ڈاکٹر بلال احمد رانا اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ہینڈسم مائنڈ ٹی وی چینل۔ مجھے امید ہے میرے تمام ویور خیر و عافیت سے ہوں گے، اور آج ہم بات کریں گے کہ عزت اور محبت میں کیا فرق ہے، اور کیا ہر محبت میں عزت شامل ہے یا کہ نہیں ہے، اور ان دونوں میں سے بہتر کیا ہے، اور انسان کو سامنے جب عزت اور محبت میں سے کسی ایک چیز کا چناؤ کرنا پڑے تو وہ کس چیز کا چناؤ کرے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ کچھ خاصیتیں اللہ پاک کی، اللہ رب العزت کی ہیں جو کہ انسانی فطرت کے تقاضوں میں بھی شامل کر دی گئی۔ مثلاً غصہ کرنا، غضب کرنا، یہ جب اللہ کی ذات ناراض ہوتی ہے اور سخت ناراض ہوتی ہے تو پھر غصہ یا غضب کی مانند ہو سکتی ہے، لیکن وہ کوئی بہت بڑے پیمانے پہ جا کے ایسا ہوتا ہے جس کے اندر ہم عمومی طور پہ فکرہ بھی استعمال کرتے ہیں کہ اللہ کے غضب کو دعوت نہ دو۔ محبت کرنا اللہ رب العزت کی خوبی ہے، اور یہ خوبی اس کائنات کی فطرت میں بھی موجود ہے۔ اسی طرح سے بہت ساری ایسی خوبیاں جو کہ اللہ رب العزت کی اپنی خوبیاں ہیں اور یہ انسانی فطرتوں کے اندر بھی موجود ہیں۔ ہماری آج کی جو بات ہے وہ تھوڑی سی پیچیدہ ہے، وہ یہ کہ کیا عزت اور محبت ایک چیز ہے یا کہ نہیں، اور کیا ہر محبت میں عزت پائی جاتی ہے ہاں کہ یا کہ نہیں۔ دیکھیں، محبت تو اندھی ہوتی ہے۔ محبت کے اندر انسان کا صحیح غلط کا تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ محبت کے اندر انسان کو نفع نقصان ختم ہو جاتے ہیں۔ اب محبت جیسے ایک اگر ہم ماں کی مثال لے لیں، ماں کو اپنی اولاد سے عزت نہیں بلکہ محبت ہوتی ہے اصل تو۔ اب محبت ہوتی ہے اس لیے اگر اس کی اولاد حرام زد ہو، دو نمبری کام کرے، کرپشن کرے، رشوت لیں، یا سارے کے سارے اوٹ پٹانگ کام کرے، الٹ کام کریں، گالیاں نکالیں، عیب ہوں ہر طرح کے، اس کے باوجود جو ماں کی ممتا ہے اس میں جو محبت چھپی ہے، وہ اپنی فطرت اور اپنی عادت سے مجبور ہو کے اپنی اولاد سے، چاہے وہ گندی اولاد ہی کیوں نہ ہو، اس سے محبت کرتی ہی کرتی ہے۔ اب اسی طرح سے اگر محبت کی دوسری مثال لے لیں کہ اگر ایک میل کی فیمیل سے یا فیمیل کے میل سے یا اپوزٹ جینڈر کی طرف جو محبت کا غالب ہونا ہے، اس کے اندر بھی ہوتا یہ ہے کہ ہم صحیح غلط کا فرق نہیں رکھتے اور ہمیں بس محبت ہو جاتی ہے، اور جب بھی کوئی بات چلتی ہے تو ہم اکثر کہتے ہیں کہ بس وہ تو جی محبت ہے، اس کے اندر میرا کوئی رول نہیں، بس وہ محبت ہو گئی۔ اگر کوئی کسی عاشق کو سمجھانے کی کوشش کرے کہ وہ گندی ہے یا وہ گندا ہے، کسی لیلا کو سمجھانے کی بات کرے یا ایسی کوئی بھی بات ہو، تو آگے سے ایک ہی جواب آتا ہے کہ جی وہ گندا ہے یا اچھا ہے، وہ گندی ہے یا اچھی ہے، مجھے نہیں پتہ، لیکن میری اس سے محبت ہے۔ اور پھر محبت میں ہوتا کیا ہے؟ محبت میں ہوتا یہ ہے کہ عقل کام کرنا چھوڑ جاتی ہے، یعنی کہ ہمیں ہر چیز ہی اچھی لگتی ہے۔ اکثر سنا ہوگا کہ عاشقوں کی کتی طبیعت، جس سے مراد یہ ہے کہ اگر ایک عاشق کے لیے جو اس کی محبوبہ ہے، وہ جس طرح کے بھی کام کرے، جس طرح کے بھی کریکٹر ہو، لیکن اگر عشق ہو گیا تو اس کا مطلب اس کو بس ہو گیا، پھر وہ اس کو گندے روپ کے اندر بھی اس کو اچھے ہی لگ رہے ہوتے ہیں۔ یا اسی طرح سے اگر ایک فیمیل کو کسی سے محبت ہو جائے میل سے، پھر وہ میل چاہے وہ عیاش پرست ہے، چاہے وہ میل دھنگا فساد کرنے والا ہے، چاہے وہ میل قتل و غارت اور خون خرابہ کرنے والا ہے، لیکن اس کے باوجود
وہ فیمیل اس کے محبت کی وجہ سے اسے خامیوں سمیت قبول کر لیتی ہے۔ میں اس ساری باتوں میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ محبت وہ فیکٹر ہے جس میں ہم خامیوں سمیت قبول کر لیتے ہیں۔ مثلا اکثر کہتے ہیں جی محبت کا بھی کچھ ہے کہ محبت تو کھوتے سے بھی ہو سکتی ہے، کھوتے سے بھی ہو سکتی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ اس کا مطلب ہم محبت کی حالت میں خامیوں سمیت قبول کر لینے کا نام محبت ہے، جو محبت ہے۔ اب اگر ایک عاشق اس کے اندر اس کو جو کچھ بھی دکھتا ہے اس کو کریکٹر سے بھی فرق نہیں پڑتا، اس کو اگر محبت ہو گئی تو اس کے لیے جینا مرنا ایک کر لیتا ہے۔ اور ہماری سوسائٹی کے اندر ہزاروں ایسے کیس بھرے پڑے ہیں کہ جس کے اندر اگلے فیمیل کی میل سے، میل کی فیمیل سے جو محبت ہوئی اور اگلا بندہ کریکٹر لیس نکلا اور اس کریکٹر لیس کی وجہ سے اس نے نقصان پہنچا دیا، لیکن اس کے باوجود لو از بلائنڈ، محبت اندھی ہے اور وہ نقصان تک اٹھا لیتے ہیں اور انہیں اس چیز کا ریئلائز ہی نہیں ہوتا کہ جی یہ کام نہیں کرنے کا تھا جو کہ ہو گیا، اور پھر اسے ہر حالت کے اندر وہ چیز قبول ہو جاتی ہے کہ چاہے وہ گندا ہے یا وہ اچھا ہے، چاہے وہ گندی ہے یا وہ اچھی ہے، تو پھر اسے محبت کی وجہ سے وہ تمام تر خامیوں کو بھی قبول کر لیتی ہے یا کر لیتا ہے، یا خامیوں کو خوبیوں میں سمجھ کے قبول کر لیتی ہے یا کر لیتے ہیں۔ مثلا محبت ہونے کے بعد تھوڑی سی فطرت نہ ایگوئسٹک بن جاتی ہے۔ مثلا اگر مجھے کسی سے محبت ہو گئی، وہ کریکٹر لیس ہے، کوئی مجھے آ کے سمجھائے کہ جی وہ بڑی گندی ہے، وہ ایسی ہے، وہ ویسی ہے، وغیرہ وغیرہ، تو میں دو باتیں اگلے کو سنا دوں گا کہ جی تو گندا ہوگا یا تو گندی ہوگی، تو نے میری محبوبہ کے بارے میں یہ کیوں کہا، اس طرح کی باتیں کر کر کے تھوڑی سی بندہ ایگوئسٹک ہو جاتا ہے، اور اس کی خامیاں بھی، عاشق کو اپنی محبوبہ کی خامیاں بھی خوبیاں ہی لگتی ہیں۔ اسی طرح سے الٹ اگر مثال کر لیں کہ اگر ایک فیمیل کو محبت ہو جاتی ہے اور اس فیمیل کو اس کی فرینڈ وغیرہ آ کے سمجھاتی ہیں کہ جی وہ لڑکا بڑا کریکٹر لیس ہے، بڑے عیاش پرست ہے، کئی لڑکیوں کی لائف کو تباہ کر دیا ہے، اس کے باوجود وہ تھوڑی سی ایگوئسٹک ہو جاتی ہے اور وہ ان کو دو چار سنا کے بھیج دیتی ہیں، اور وہ کہتی ہے جی نہیں گند بڑا اچھا ہے، نہیں بڑا اچھا ہے، نہیں بڑا ہی اچھا ہے، مطلب وہ اس کو خوبیوں کو اور خامیوں کو، تمام چیزوں کو صرف خوبیوں میں ہی رکھنے کو ترجیح دیتی ہے۔ جس طرح سے ایک ماں اپنے بیٹے کی خامی کو نہیں سن سکتی، اس کے بیٹے میں 1000 طرح کے عیب ہوں، اس کے باوجود وہ ماں کا لال ہے، اس کے باوجود وہ لاڈلا ہے، اس کے باوجود وہ اچھا ہی ہے، اس نے جان بوجھ کے گناہ کیے ہوں، پھر بھی ماں کو لگتا ہے کہ نہیں مجبور ہو کے کیے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ تو وہ جو محبت ہے وہ ایک بلائنڈ چیز کا نام ہے۔ اب مجھے امید ہے کہ یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ محبت جو ہوتی ہے وہ بلائنڈ ہے، اس کے اندر صحیح غلط کا تعلق نہیں ہوتا، اس کے اندر رائٹ اور رانگ کا تعلق نہیں ہوتا، اس کے اندر کیا چیز میرٹ پہ ہے اس کا تعلق نہیں ہوتا، اس کے اندر بس محبت ہے تو ہو جاتی ہے، اس کے اندر وہ اگلے کی پرسنالٹی غلط ہے تب بھی اچھی ہی لگتی ہے اور اچھی ہے تب بھی اچھی ہی لگتی ہے۔ اس کے برعکس دوسری چیز ہمارے پاس ہے عزت، رسپیکٹ۔ اب ہر محبت میں عزت شامل نہیں ہوتی، مثلا اس چیز کے اوپر ہزاروں فلمیں بنی پڑی ہیں کہ جس کے اندر ایک میل کریکٹر کو سارے عیب ہوتے ہیں، اس کے اندر ساری عیاشیاں ہوتی ہیں، اس کے اندر سارا کچھ اس کے اندر بغیرتیاں موجود ہوتی ہیں، اور اس کے باوجود وہ جب اپنی محبوبہ سے وہ محبت کرتا ہے یا کرتی ہے یا کرتا ہے کہ مثال ہے، کیونکہ زیادہ تر جو موویز بنی پڑی ہیں عمران ہاشمی کی بہت ساری موویز اس حوالے سے اور بہت سارے کریکٹر کی موویز اس حوالے سے ہیں کہ جس کے اندر وہ سارے عیب موجود ہیں میل ذات کے اندر، لیکن وہ سارے عیب موجود ہونے کے باوجود عیاشی بھی ہوگی، دھنگا فساد کرنے کی بھی عادت ہوگی، وہ اپنی محبوبہ کو محبت بھی دے پا رہا ہوگا لیکن عزت نہیں کر پا رہا ہوگا۔ اب محبت کو دینا اور عزت کو دینے کے اندر فرق ہے۔ مثلا اگر ایک بندہ
मोहब्बत के आड़ के अंदर आके अपनी महबूबा के लिए सब कुछ अपना तन मन कुर्बान कर दे, अपने पूरे के पूरे जिस्म की कुर्बानी उसके ऊपर लगा दे, तो वो तो मोहब्बत हुई। लेकिन अगर अपनी महबूबा को अच्छे और बुरे का नहीं समझाता तो इसका मतलब मोहब्बत तो है लेकिन इज़्ज़त नहीं है। अगर वो अपने आप को तब्दील करने की कोशिश नहीं करता, इसका मतलब मोहब्बत तो है लेकिन इज़्ज़त नहीं है। अगर वो अपनी महबूबा को मिसाल के तौर पर दिन में 4 गालियाँ सुना देता है, रात को पूरा टाइम दे देता है, तो वो मोहब्बत तो है लेकिन इज़्ज़त नहीं है। अगर एक बंदा अपनी महबूबा को टाइम आने पर या करीब आने पर तो दिलो जान से फ़िदा हो जाए, उसके लिए सब कुछ सही गलत इकट्ठा कर दे, उसके लिए दुनिया जहान की दौलतें इकट्ठा कर दें, उसके लिए हलाल हराम सब कुछ इकट्ठा कर दे, लेकिन इसके बावजूद अगर वो अच्छाई के रास्ते पर नहीं चलाता तो इसका मतलब उसको आपसे इज़्ज़त नहीं है, मोहब्बत है। थोड़ा सा पेचीदा बात हो गई, मेरे ख्याल शायद आपको थोड़ी सी तवज्जो चाहिए होगी इस बात को समझने के लिए कि जो मोहब्बत है ना उसमें कुछ भी दिखाई नहीं देता। मैंने शुरू में ये बात बताई थी, उसके अंदर हलाल हराम का सही गलत का कोई ताल्लुक नहीं है। जो इज़्ज़त है, रेस्पेक्ट है, क्योंकि इज़्ज़त तो बनती ही इस बुनियाद से है, इस क्राइटेरिया से बनती है कि उस बंदे के लिए सिर्फ अच्छाई हो। इज़्ज़त का मतलब ही अच्छाई है। मोहब्बत के अंदर दोनों चीज़ें शामिल हो सकती हैं, अच्छाई और बुराई। इज़्ज़त में सिर्फ अच्छाई शामिल होती है। यानी अगर एक बंदा को सही और गलत की पहचान है, हलाल और हराम की पहचान है, और अपनी महबूबा को सही और गलत के बारे में बताता है, हलाल और हराम के बारे में बताता है, राइट और रॉन्ग के बारे में बताता है, क्या चीज़ इस मुआशरे में बेहतर है बताता है, और अपनी उसको इज़्ज़त ही समझता है तो घर की 4 दीवारी के अंदर रखता है, अगर ये खासियतें हैं तो इसका मतलब उसको मर्द को इज़्ज़त है। मोहब्बत तो हो, इज़्ज़त के अंदर मोहब्बत शामिल हो सकती है लेकिन मोहब्बत में इज़्ज़त शामिल हो ये लाजमी नहीं होता। इसीलिए हमारी सोसाइटी के अंदर जब आस पास हम बहुत सारे लोगों को देखते हैं तो मोहब्बत करने वाले हज़ारों लोग मिल जाते हैं लेकिन इज़्ज़त करने वाला कोई कोई मिलता है। और हमेशा याद रखें कि जब मोहब्बत करने वाले लोग मिल जाते हैं उसके ऊपर हम जान मान तन धन हर चीज़ कुर्बान कर देते हैं, लेकिन हमने कभी इस चीज़ का ख्याल ही नहीं रखा कि उसकी इस मोहब्बत में इज़्ज़त भी शामिल है या कि नहीं है। और जिनको धोखे होते हैं मोहब्बत के अंदर तो उसकी एक ही वजह होती है और वो ये है कि वो अपने आशिक की तबीयत में जो मोहब्बत है उस मोहब्बत में इज़्ज़त भी थी या नहीं थी उस चीज़ को नहीं समझ पाती। अब अगर एक फ़ीमेल अपने आशिक की मोहब्बत में इज़्ज़त के पहलू को भी समझ ले तो वो रिश्ते कभी ख़राब नहीं हुआ करते। ऐसे ही हमारी सोसाइटी के हर रिश्ते की मिसाल है। आप अपने ख़ानदान को इकट्ठा कर लें, अगर आपका ख़ानदान आपसे मोहब्बत के दावों की मिसाल करता है और आप पे के मुश्किल टाइम पर आपको छोड़ के चला जाता है और कहता है जी वो मेरी मोहब्बत है, अच्छा में बड़े अजीज़ हैं, तो फिर वो मोहब्बत नहीं है। ऐसे लोगों से हमेशा बचें। और अगर आपको उस मसले से निकालने तक आपके साथ रहते हैं या उस परेशानी से निकालने तक आपके साथ रहते हैं तो इसका मतलब ये है कि उसको इज़्ज़त है आपकी। अब थोड़ी सी आप पेचीदा बात हो गई कि याद रखें अगर आप लोग अच्छे लेवल पे रिश्तों को इस्तवार करना चाहते हैं तो खुदारा मोहब्बत के पीछे ना भागे, इज़्ज़त के पीछे भागे। और जहाँ पे आपको इज़्ज़त मिलती है उनसे ताल्लुक़ रख लें और जो आपसे मोहब्बत के दावे करते हैं उनसे ताल्लुक़ छोड़ दें। अगर आपको लगता है कि जी मेरा महबूब
बड़ा ही मोहब्बत देने वाला है, और फिर आपको लगता है कि जी कहीं पे कोई अगर ऐसी बात आ जाए समझाने की, नफ़े नुकसान की, उसका ख्याल नहीं रखता, तो ऐसे लोगों को छोड़ दें। इसका मतलब वो मोहब्बत करता है, वो इज़्ज़त नहीं करता। इज़्ज़तदार जो लोग होते हैं वो दूसरों की इज़्ज़तों का ख्याल इस हद तक करते हैं कि जब तक उसको अच्छाई के रास्ते पे न ढाल दें, उस वक्त तक वो पीछे लगे रहते हैं। और मोहब्बत करने वाले लोग अच्छाई और बुराई की तमीज़ को, फ़र्क को नहीं समझते, और हर हालत में जिद बाजिद लगाते हैं कि बस वो चीज़ चाहिए, चाहे वो दुनिया की कोई चीज़ थी, चाहे वो किसी इंसान से ताल्लुक़ था। मोहब्बत में इंसान अंधा है, उसका मतलब होता है चाहने से, हासिल करने से। और ये तो एक मतलबी बात हुई ना, चाहना, हासिल करना, और अच्छाई के रास्ते पे ढालना ये मतलबी बात नहीं है। अगर आप लोगों को मोहब्बत और इज़्ज़त में फ़र्क समझ आ गया, मैं आप लोगों को चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, आप लोगों को कोई ज़िंदगी में परेशानी नहीं होगी। आप लोगों के हर एक से अच्छे ताल्लुकात बनेंगे। आप लोगों को जहाँ लगता है कि हमें इज़्ज़त मिलती है, वहाँ पे ताल्लुक़ रखें। और आप लोगों को जहाँ पे लगता है कि जी हमसे मोहब्बत तो करते लेकिन इज़्ज़त नहीं करते, ऐसे ताल्लुक़ को छोड़ दें। अगर ऐसे ताल्लुक़ को नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि याद रखें, अक्सर सुना होगा कि जी फलां लोगों के दरमियान बड़ी मोहब्बत थी, फिर छोड़ दिया उन्होंने आपस के अंदर। क्यों छोड़ दिया? क्योंकि वो मोहब्बतों के भीत चढ़ के छोड़ दिया। जिस दिन आंखें खुलती हैं उस दिन अगले बंदे को छोड़ने को दिल करता है। अब मोहब्बत में यही होता है, चूँकि हलाल हराम को तो पता ही नहीं होता, सही गलत को तो पता ही नहीं होता, नफ़े नुकसान को तो पता ही नहीं होता, मेरिट का तो पता ही नहीं होता, राइट और रॉन्ग का तो पता ही नहीं होता, तो फिर बंदे हासिल करने के तक दो में तो लगे ही रहते हैं। लेकिन जिस दिन थोड़ा सा शऊर आता है, उस दिन अगले बंदे को छोड़ने को दिल करता है कि ये बंदा मेरी इज़्ज़त तो करता ही नहीं है, मोहब्बत का मैं क्या चार डालूँगी, क्या चार डालूँगा। अगर इज़्ज़त करता है या करती है तो ताल्लुक़ निभाएं, चलाएं, कायम रखें। और अगर मोहब्बत के दावेदार बनते हैं तो फिर वो तो सिर्फ मुनाफिक लोग हैं। अब दूसरी मिसाल के अंदर देखिए, मोहब्बत का दावा करने से कोई ठेकेदार नहीं बनता। मोहब्बत झूठी साबित हो सकती है, और सिर्फ मोहब्बत का दावा करने से मुनाफ़िकत की इलामत में से है। सिर्फ मोहब्बत, अगर उस मोहब्बत में इज़्ज़त भी है फिर मुनाफिक नहीं है, और अगर सिर्फ मोहब्बत के अंदर नारेबाजी है तो फिर इसका मतलब वो मुनाफ़िकत की इलामत है। जैसे कि मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर बताया था आप लोगों को कि जी अगर हम कहते हैं कि हम अपने प्यारे नबी से मोहब्बत करने वाले हैं, तो फिर उनकी इज़्ज़त का तकाजा ये है कि हम सुन्नत नबी के ऊपर चलते हैं और हर सुन्नत नबी को ज़िंदा करने की कोशिश करते हैं, और सुबह से लेकर शाम तक हम सारे वो काम करने की कोशिश करते हैं जो मेरे नबी ने किए। और अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारी मोहब्बत में इज़्ज़त शामिल है, और अगर हम ऐसा नहीं करते तो फिर हमारे सिर्फ मोहब्बत के दावे हैं जो कि मुनाफिक लोगों के दावे होते हैं। इसी तरह से अगर एक बंदा हज़रत इमाम हसन हुसैन से मोहब्बत का दावा करता है, अगर वो हज़रत इमाम हसन हुसैन की तरह ज़िंदगी गुजारता है, इश्क के महबूब के रंग में ढल जाने का नाम ये इज़्ज़त और मोहब्बत है, और सिर्फ नारे लगाने का नाम सिर्फ मोहब्बत है, उसमें इज़्ज़त ना हो तो वो खोखली है। अब अगर एक बंदा हज़रत इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, अगर एक बंदा सिर्फ नारे लगा के साबित करता है कि जी मैं आशिक हूँ, लेकिन इसके बावजूद उस नक्शे कदम पे नहीं चलता, तो फिर वो मुनाफिक है। लेकिन अगर उसके नक्शे कदम पे चलता है, मसलन हज़रत इमाम हुसैन ने अपनी जान दी, नमाज नहीं छोड़ी, यानी अगर हमें भी नमाज इतनी ही अजीज़ है, हमारी कोई नमाज मिस नहीं होती, फिर हम इज़्ज़त का हक़ अदा कर रहे हैं। और अगर हम सिर्फ नारा लगाते हैं और नमाज से नफ़रत करती हैं, नमाज का नाम सुन के हमारे अंदर शैतानियत आती है, नमाज का नाम सुन के हमारे जिस्म के अंदर दर्द महसूस होता है, भाई हमसे ये काम नहीं होता, तो फिर हम भी मुनाफिक हैं। यानी आप जिससे मोहब्बत के दावे की बात करते हैं, अगर उसके मुताबिक अगर आप अच्छाई के तकाज़ों पे भी चलते हैं तो फिर आपकी मोहब्बत में इज़्ज़त शामिल है। और अगर आप सिर्फ नारेबाजी करते हैं तो सिर्फ मोहब्बत है, उसमें इज़्ज़त नहीं है, तो फिर वो खोखली है।
दुनिया के जितने भी रिश्ते हैं हमेशा याद रखें, अगर उन रिश्तों में मोहब्बत के अंसर के साथ आपको इज़्ज़त भी मिलती है तो इसका मतलब आपको वाकई ही वो ताल्लुक़ निभाने चाहिए। और अगर एक बंदा आपके ख़ानदान में से, दोस्तों में से, कोलीग में से, आपके साथ चलने वालों में से कोई एक बंदा अगर आपको साथ मोहब्बत का दावा करे और मोहब्बत के दावे के साथ साथ आपकी इज़्ज़त का ख्याल ना रखे या मुश्किल टाइम के वक्त आपको तन्हा छोड़ दे और फिर वक्त पड़ने पर आपसे मोहब्बत का दावा करके आपके करीब आए, तो ऐसे मुनाफिक लोगों से हमेशा बचें और उन लोगों के साथ रहना सीखें जहाँ से इज़्ज़तें मिलती हैं। मेरा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद इज़्ज़त वाला है, इज़्ज़त देने को पसंद फरमाता है, और तुम में से बेहतर वो है जो दूसरों को इज़्ज़त दे। और जो दूसरे को इज़्ज़त देता है इसका मतलब वो मोहब्बत देता है। हर इज़्ज़त में मोहब्बत का अंसर लाजमी आ जाता है, लेकिन हर मोहब्बत में इज़्ज़त आ जाए इसका कोई कंफर्म नहीं है। तो खुदारा अपने आसपास ऐसे लोगों से बचें, ऐसे मुनाफिक लोगों से बचें कि जो आपके साथ मोहब्बत के दावों के लिए दावे तो करते हैं लेकिन आपकी इज़्ज़त नहीं करते। ऐसे लोग किसी भी लम्हे आपको तन्हा छोड़ जाएंगे। बीइंग साइकोलॉजिस्ट, बहुत सारे केस को स्टडी करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मोहब्बत के अंदर इंसान किसी को छोड़ सकता है लेकिन इज़्ज़त में इंसान किसी को नहीं छोड़ता होता। और अगर इज़्ज़त में फ़ासले आ भी जाएंगे तो ज़बान पे मुखालिफ बंदे की अच्छाई रहती है, और मोहब्बत में अगर फ़ासले आ जाएं तो फिर फ़ौरन से हम दूसरों की बुराई करना शुरू कर देते हैं। याद रखें कि अगर हम दूसरों की बुराई करना शुरू कर देते हैं तो हमें उससे मोहब्बत ही थी, इज़्ज़त नहीं थी। और अगर हम उनसे अलग होने के बावजूद भी अच्छाई ही बयान करते हैं इसका मतलब हमें इज़्ज़त है, मोहब्बत नहीं है। तो खुदारा ऐसे रिश्तों की कदर करें जो आप लोगों को इज़्ज़त देते हैं, और ऐसे रिश्तों से बचें जो सिर्फ मोहब्बत के दावेदार और ठेकेदार बनते हैं लेकिन मुश्किल टाइम पे आपको छोड़ देते हैं, और दिन में दसियों दफ़ा नारा आपसे की मोहब्बत का लगाते हैं लेकिन आपके ऊपर मुश्किल आने पर आपको छोड़ के चले जाते हैं, या आपका तमाशा देखते हैं, या आपसे फासले पे खड़े होते हैं, या आपको सलाम करना पसंद नहीं करते। तो ऐसे लोगों से बचें। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इंशाल्लाह आपको इस हवाले से बताएंगे कि लोग कौन कौन से फैक्टर हैं कि लोग आपके करीब आते हैं और कौन कौन से फैक्टर हैं कि लोग आपसे दूर जाते हैं। अब तक के लिए मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको समझ में आ गई होगी और आप लोग सीख और समझ चुके होंगे मोहब्बत और इज़्ज़त के ताल्लुक़ को, और इसमें कंपैरिजन क्या है अमंग लव एंड रिस्पेक्ट। और मुझे उम्मीद है कि ये चीज़ें देख के, सीख के, समझ के आप लोग दूसरों की भी मदद कर सकेंगे और ऐसे लोगों से ताल्लुक़ रखेंगे जो आपको इज़्ज़त देते हैं। वही खालिस लोग होते हैं जो आपको इज़्ज़त देते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसके साथ ही अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि बर वक्त आप लोगों तक हमारी तमाम वीडियो मौसूल होती रहे। इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह।